A very warm good evening to one and all. Welcome back to the today's session. Today's our guest speaker name is Dr. Jasmine Ma'am, Associate Professor from the Department of Organon of Medicine, Sri Ganganagar Homeopathy Medical College and Hospital and Research Institute, Tantia University, Sri Ganganagar. So today's topic will be homeopathy research and introductory overview. Over to you, Rabia, for the further handover. Shall I start? Ma'am, we will have a small introduction regarding you, ma'am. Dr. Manali, kindly have a small introduction regarding ma'am. Good evening, everyone. I hope you are all doing well. Thank you for joining us today for this wonderful session. So, today we have our speaker guest, Dr. Jasmine Ma'am. Dr. Jasmine Ma'am is an professor at Tantia University with a focus on the organ of medicine. She has extensive experience in teaching and research in homeopathy. She holds a PhD scholar from Tantia University, an MD in organ of medicine from Ludhiana College, and a BHMS from Abohar College. She has been attending seminars in the field of clinical homeopathy since 2007, passionate about fostering practical academic growth through research. Dr. Jasmine Ma'am has also published several papers on topics like electrophotonic imaging in homeopathy, stress assessment in children, and case studies. She is also skilled in teaching, research, and data analysis to homeopathy students and is actively involved in community service and public speaking. So, welcome, ma'am. Thank you so much for joining us. Over to you, Dr. Lavanya, ma'am. Thank you, Manali. We welcome you all. We welcome you, ma'am. We welcome all the participants. The session is all yours, ma'am. Thank you. Thank you, Lavanya. Thank you, Manali, for the warm introduction. It's a pleasure to be here today. As Lavanya mentioned, my name is Dr. Jasmine, and I identify myself as a student of homeopathy first, then a classical way practitioner, then become a teacher of organon, and then turn to a researcher. And now research in homeopathy field is my current area of interest. And I like to learn about it, then share about it, about my understanding of it. So today I will be talking about the introductory overview of homeopathy research. Over the next 1 hour, we will cover some very basic idea about it. This topic is relevant to every person related to homeopathy, be it a first year of student or a senior practitioner who is having 30 years of experience, same for both of them. I hope you will find this information valuable in framing a basic idea about research in homeopathy. So let's start. Is my slides visible? Yes, ma'am. Okay. Okay. So first, the topic name itself, homeopathy research and introductory overview, is just an introduction or wo bhi upar se. Nothing deep, so anyone can understand. So not a big thing. So this is divided into 2 parts. Think it like that, जैसे आपने कोई बुक खोली है अभी तो फर्स्ट पेज देखा है उसका और फर्स्ट पेज में कुछ हेडिंग लिखा है एंड देन यू ओपन द बुक एंड द book index comes. Then you see the index is divided into 2 parts. If you open a book of research, the whole introduction, the whole index part is divided into 2 parts. First section is research methodology. That's the theory part that involves a framework.
it helps to choose, write, what kind of research you want to do, and everything around it, how to write, how to publish, everything. And the second section is called biostatistics. This is 20% according to me, because it involves calculation, mathematics, formulas, building graphs, or mostly softwares जो कि quick calculation, errorless calculation हमें करके दे सके. That's the whole idea. So whenever you open a book, the first index you will see, if it is the heading is research on the book, then it is divided into two parts. अगर book का नाम ही research methodology है, then you only see the research methodology. अब अगर book का नाम biostatistics है, तो उसमें सिर्फ biostatistics है. तो इसलिए don't confuse it. If you are buying a book of research, then you will see both. So this will help you to build an idea about the topic. So next, how we learn? Kuch bhi naya, because this is new for many people, many practitioners, and every student. So first you see, abhi tak kya hua hai? What is already done? How does it look? Like in libraries, on websites, on magazines, like theses and articles. वो कैसा दिख रहा है जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं. Like if you want to build a car, तो पहले आप कार देखोगे, how it looks, how कैसा होता है, कैसी functioning है, कैसे टायर है, you will sit on your experience, then you want to learn it. Otherwise, पता नहीं, I want to build it or not. This is the basic idea. So if you want to learn about it, then first see what is already done in this area. So go to websites, libraries, your thesis, your senior thesis or articles, go to it. Then the second part is learning. What to do, ways to do, कि क्या करना क्या है exactly. और ये हम कहाँ से सीखते हैं? From the books, from the classes, from the seminars, any courses. One of these जो हम आज कर रहे हैं seminar में. So this is the first. Look, let's look. This is an article published by me. ऐसा कुछ होगा. This is we are learning. कि ऐसा क्या होगा. First we will do it, and this is the last step. जब सारी research हो जाती है, then you publish it. और दूसरे ये जानते हैं कि क्या काम हुआ है. जिसे आप न्यूज में भी सुनते हो, न्यूज़पेपर में भी देखते हो कि ये रिसर्च हुई, ऐसा हुआ, ये रिसर्च हुई, ऐसा हुआ. तो वो रिसर्च हमें पता कैसे चली? Someone is publishing it on paper, on magazines, on websites. Then you see a format. This is a format of publishing, conveying the information, what I have done. So this has a format. This has a heading. This has some abstract. This has some introduction, what methods are used, then what is the result. So if you learn everything, then you only understand what is given here information. Unless otherwise क्या होगा कि आप read तो कर लेंगे कि what is given in the article, पूरा 100% उसका यूज नहीं होगा. कि जैसे कई बार सिर्फ हेडिंग देख के ही पता चल जाता है कि पूरी आगे क्या है. इफ यू नो एवरी वर्ड ऑफ इट, तो आपको पूरा अंदर का आइडिया भी हो जाएगा कि ये आपको पढ़ना भी है या नहीं. जैसे कि आप बुक खोलते हो, इफ यू गो टू ए बुक शॉप और आप बुक की हेडिंग्स देख लेते हो, अच्छा ये वाला मुझे नहीं, ये बुक नहीं चाहिए, फिर आपको थोड़ा सा होता है हाँ ये वाला बुक चाहिए, ये टॉपिक पे चाहिए, तो आप उसको खोलते हो, अच्छा ठीक है, आप उसका इंडेक्स देखते हो, पीछे तक देखते हो, देन यू विल सी इट इज यूजफुल फॉर मी और नॉट, देन यू बाय इट. सो देयर इज अ फॉर्मेट of writing a book. Everything has a format. So this is a format to publish a research. So this, और जब thesis देखोगे वो अलग डिटेल में होगा. This is a very short format. In 2 or 3 pages में आर्टिकल पब्लिश हो जाता है जिसमें सारी रिसर्च के बारे में लिखा होता है इसके अंदर. Next is the bigger circle is research. Research इतना बड़ा है, उसमें हेल्थ रिसर्च एक एरिया है, उसके अंदर होम्योपैथिक रिसर्च एक डिफरेंट एरिया है. सो व्हाट अप्लाइज टू द होल रिसर्च, देन इट अप्लाइज टू कुछ ना कुछ उसमें से निकल के हेल्थ रिसर्च पे आएगा कि इसके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, हाउ इट इज डन, व्हाई इट इज डन, एवरीथिंग
it applies, something applies to health research. Then what is in health research, something applies to homeopathy research. So this is the way. Ma'am, sorry to interrupt, ma'am. So slides are not changing, ma'am, actually. Okay. Now it's changing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Till which slide you seen it? This slide you see? Yes, ma'am. Research slide, ma'am. Yes, ma'am. Okay. This article you see? No, ma'am. No, ma'am. Okay, we'll talk about. Okay, let's start with it. This slide you've seen, we have divided everything in research methodology and biostatistics. Then we have learned how first you have to see it, then you have to learn it. Okay, then this is the thing कि ये article है, ये कैसा दिखता है. First the heading, then the abstract, then the introduction, then the methods. ये पूरा एक format है. इसके अंदर की चीज लिखी जाती है, convey की जाती है इसके अंदर. तो आपको अगर एक एक एरिया का नहीं पता होगा, then you cannot grasp the actual information fully, और जो आपके यूज में आएगा. तो mostly the headings conveys maximum part. तो this we are going to learn in whole research कि कैसे किया जाता है, उसके बाद लास्ट में कैसे पब्लिश किया जाता है. दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ डूइंग इट. ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि रिसर्च एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कितनी तरीके की रिसर्च होती है. एवरी फील्ड, नॉट जस्ट हेल्थ, मैनी, एवरी फील्ड एज ए रिसर्च उसके अंदर हो रहा है. Then there is a health research, then there is a homeopathic research. This I was talking about कि इतना बड़ा रिसर्च है, उसमें एक हेल्थ रिसर्च है, देन ए होम्योपैथिक रिसर्च एरिया, जो रूल्स, रेगुलेशन, मेथड्स, टेक्निक्स, एवरीथिंग जो रिसर्च में होता है, उसमें से कुछ चीजें जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटिव है, उनसे रिलेट करती है, उन पे अप्लाई होती है, दैट वाज अप्लाइड हियर. एंड उसमें से भी जो होम्योपैथिक फील्ड से रिलेवेंट है, वो चीज यहाँ यूज होती है. एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन रिसर्च इज डजंट अप्लाई ऑन होम्योपैथिक रिसर्च. ऐसी बहुत सी चीजें हैं तो इसी के लिए होती है, हमारी फील्ड में ही होती है. देन व्हाट इज टुडेज एजेंडा? एज वी टॉक अबाउट फर्स्ट सेक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड उसका भी फर्स्ट चैप्टर, जैसे किसी बुक का आपने टाइटल देख लिया, इंडेक्स देख लिया, जब आप उसका फर्स्ट चैप्टर निकालोगे तो फर्स्ट चैप्टर क्या निकलेगा? इंट्रोडक्शन. दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका. एंड दैट वी विल टॉक अबाउट इन 5 sections. First, what is research? Why to do research? How to do research? Difficulties in doing it and the solutions. क्या है रिसर्च, क्यों कर रहे हैं, और फिर हम कैसे करेंगे उसके अंदर. Then the difficulties and solutions. So what first thing is what we are talking about, what is the research? The research, the bigger circle I'm talking about, the bigger circle, a systematic way of asking questions or a systematic method of inquiry. The heading is, the underlying thing is systematic. Everything that is systematically done, then it is called research. अगर आप questions, planning, everything जब system से किया जाएगा, then only it is called research. Randomizely कोई भी result आ जाएगा, that is not a research. So the main point is systematically. आगे जहां पे भी लिखा होगा, अगर उसमें कोई system, कोई plan, कोई format नहीं है, then वो research में नहीं आएगा. उसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको कोई आंसर मिल गया, दैट इज ओके. बट अगर वो सिस्टम से निकला है तो वो रेप्लिकेट किया जा सकता है. तो द मेन थिंग, एवरी टाइम यू हर्ड द वर्ड रिसर्च, फर्स्ट थिंग यू आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो आना चाहिए, क्या सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम अबाउट इट. सो रिसर्च इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन. और इसी से ये साइंस कहलाती है. एनी साइंस, वो साइंस तभी बनता है जब उस इस सिस्टम से निकलता है, वरना एक स्किल ही है बस, आप बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं ऐसे करके. और रिसर्च में क्या होता है, नॉलेज इज एवर चेंजिंग.
हर बार नई रिसर्च आ रही है, हर बार अपडेट हो रहा है, पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज मिल रही है, क्योंकि सिस्टमेटिक वे से नई चीजों की खोज की जा रही है. वी आर फाइंडिंग न्यू थिंग्स every day, updating ourselves for better things. That is the thing done in research. Knowledge proceeds soundly every time. It's this very smooth process, very long process of doing it, but knowledge progress always. Discoveries that improve the health of man, वो research से ही आएगा. And most important, if everything changes, everything updates, there is the research make you humble, less dogmatic. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉलेज ओपन कर देता है ब्रेन कि क्या क्या नया आ रहा है. आज तक ये पता था, कल को कुछ और पता है, कल इससे भी ज्यादा पता है. सो इन 200 years होम्योपैथी की नॉलेज कितनी बेटर हो गई. जैसे जैसे नए इक्विपमेंट्स आते हैं, नई नई चीजें आते हैं, नए अपडेटेड माइंड्स आते हैं, तो सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है ना. दैट्स हाउ रिसर्च इज हेल्पिंग अस टू डू दैट. So first we are talking about the research, then we are talking about the health research. Same word, systematic knowledge that contribute to generalizable health knowledge. एक सिस्टम से आई हुई इंफॉर्मेशन, सिस्टमेटिक वे से हमने जो गेन करी थी, उससे जो हमको नॉलेज मिला, वो एक जनरलाइजेबल हेल्थ नॉलेज था. सब पे अप्लाई हो सकता है, सबकी हेल्थ पे अप्लाई हो सकता है. अगर वो सिस्टम से नहीं आता तो बहुत कम लोगों के काम में आएगा. Why I'm talking about it? आगे इसकी है जो 5 तरीके की इसमें जेनरिक एरिया है जिसमें ये हेल्थ अपने जब काम करते हैं तो क्या क्या हेल्थ में अपने रिसर्च में काम करते हैं. जैसे इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, the diverse causes, then it work on the solution and interventions to prevent, then to cure it after, and then we make up policies and programs, how to implement it. Then after implementing it, we evaluate what we have done, it is okay, it is giving results or not. This is the whole step-by-step process of doing research in health. So let me take an example. मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लाइक इन कोविड, हमने पहले ये देखा कि ये कितनी की सीरियस था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा था, कितने एरियाज में इफेक्टेड था. फिर हम ढूंढने लगे कि अच्छा हमें पता लगा ये तो बहुत ज्यादा फैल गया है. देन वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट वर द कॉजेस, कहाँ से आया, कैसे बन रहा है, कौन सा बिहेवियर, कौन सा सोशल बिहेवियर, कौन सा एनवायरमेंट फैक्टर, व्हाट वाज इफेक्टिंग इट. देन वी वर स्टार्ट टू फाइंडिंग द सॉल्यूशंस. इंटरवेंशन मीन्स व्हाट वी हैव गिवन इन, आप जो भी बॉडी के अंदर डालते हो उसको चेंज करने के लिए, जैसे मेडिसिन देते हो या कुछ मैनेजमेंट में आप इसको स्टीम दे रहे थे, काढ़े पिला रहे थे, इन योगा यू आर डूइंग योगा, एवरीथिंग दैट इंटरवेंशन बॉडी के साथ किया जा रहा था. हम वो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, फर्स्ट टू प्रिवेंट इट, देन आफ्टर टू क्योर इट. फिर हम उसके लिए क्या कर रहे थे, जब इतना सब कुछ हो रहा था, देन वी वर मेकिंग पॉलिसीज अबाउट इट, द प्रोग्राम्स, किसको आपको इंडिया में आने देना है, किसी को क्वारंटाइन करना है, आपको कॉलोनीज बंद करनी है. दैट वाज ऑलरेडी डन, अप्लाई. और जब ये सब कुछ अप्लाई कर दिया फॉर 1.5 or 2 years, देन वी वर इवैल्यूएटिंग जो किया उससे कितना इफेक्ट आया, बाद में उसका एनालिसिस होता है. तो दिस वाज द थिंग कि हेल्थ रिसर्च में ये चीज होती है, किसी नए को लेके भी हो सकती है, पुरानी चीजों को लेके भी हो सकती है, डिजीजेस को, एवरीथिंग. तो दिस इज वाज द होल प्रोसेस जो एक हेल्थ रिसर्च में होता है. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि होम्योपैथी में क्या होता है. रिसर्च इन होम्योपैथी, a systematic study of homeopathic medicines to discover or to verify the clinical pharmacological action of drugs and or their adverse effects, or with the objective of determining their safety, their efficacy and the clinical utility. ये जो डेफिनेशन है, इस वाली डेफिनेशन में और इस वाली डेफिनेशन में कितना फर्क है कि इसमें सिस्टमेटिकली जनरलाइजेबल हेल्थ नॉलेज में खत्म हो गया था. दिस इज द इंफॉर्मेशन राइट नाउ वी आर यूजिंग बाय CCRH and NCH, but over the years this will also change in my opinion. Right now we are only studying the systematic study of homeopathic medicines to discover it, to verify it, their actions,
their adverse effect, their safety, efficacy, then it will increase day by day. Right now, what we are doing in research, homeopathic research, this we are doing. And the second thing we are talking about, why. First we have done ki kya hai, just. Okay, then why. Why to do research? So first, why is objective. Same. First thing, it adds to the scientific knowledge. It improves the medical and health practice, benefits the patient, study new phenomena for establishing the facts, help in planning, support management aspect of the health. क्या क्या मैनेजमेंट हम उनको दे सकते हैं. Improve the diagnostics. एनीथिंग, नया टेस्ट आ जाएगा, बारी बारी टेस्ट करके देखेंगे तो चीपर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, उसमें एरर्स नहीं आएंगे. हेल्प इन इफेक्टिव पेशेंट केयर, जो मेन मुद्दा है. सो रिसर्च इनकलकेट्स साइंटिफिक इंडक्टिव थिंकिंग, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग इट. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट. अगर कोई नया कुछ नहीं पता चलेगा, पेशेंट्स को हेल्प नहीं होगा, कुछ नया मिलेगा नहीं, तो व्हाट द पॉइंट ऑफ डूइंग इट. सेकंड, व्हाई वी आर डूइंग इन होम्योपैथी, व्हाट इज द नीड. फर्स्ट इज वैलिडेशन. Validation of traditional principles and philosophy on modern understanding and concept. Validation of traditional used drugs, their mathematical accuracy of laws, confirmation of the effect of drugs. Why we are validating it? क्योंकि validation चाहिए. We have only the theoretical knowledge, systematically way से वो किया हुआ है हमारे stalwarts ने, उसको दोबारा से दोबारा करके confirm करना पड़ता है ताकि modern लाइन में, मॉडर्न रिसर्च में उसको दिखा सके. That's to prove, to validate that. Then the why we have to validate it. The main question, why are for others to understand, not for us. Validation is not, हमको तो पता है कि हम इतने टाइम से 200 years से होम्योपैथी यूज कर रहे हैं, but we have to prove to others ना. In many countries होम्योपैथी बैन हो रहा है. So when we have the research papers to show, then we get the permissions in the bigger area. बहुत ज्यादा ग्रांट मिलता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है, WHO इन्वॉल्व होता है. ओवर द टाइम किसी भी साइंस को हेल्प मिलता है. इफ यू हैव रिसर्च पेपर पब्लिश्ड, दे गिव द वैलिडिटी. Otherwise, we have experience data. We were using homeopathy is furnishing anything like anything in India. Best thing India में जो हो रहा है homeopathy के लिए, but still we need papers for validation. Then the innovation. Why? To overcome new diseases, novel diseases, developing new indications for existing drugs, developing new drugs also, and bring in scientific advancements. कुछ भी नया निकल के आ सकता है. Inculcate interest in profession. बहुत कुछ लॉजिकल माइंड के लोग होते हैं, उनको कुछ लॉजिकली दिया जाएगा, देन ओनली दे लर्न. फिलॉसफी से बहुत लोग कई बार नहीं सीख पाते. When we give a objective reasoning, when we show a research, then they grasp the knowledge. कितनी ही अच्छी चीज हो, रीजनेबिलिटी के साथ उनको ग्रास्प मिलता है. So we can attract intelligent minds in our field by showing researches. Then reduce redundant ideas. जो ideas, जो theories नहीं चाहिए आज के टाइम में, we can साइडलाइन कर सकते हैं. लेकिन साइडलाइन करना होता है वो भी लॉजिकली, कि आज तक जो होता है अगर उसको चेंज करना है तो भी उसका कोई पॉइंट चाहिए. तो रिसर्च कैन हेल्प अस टू डू दैट. नेक्स्ट इज टेक्निकल एडवांसमेंट. कैसे, क्या टेक्निकल हो सकता है होम्योपैथी में? ऐसा कुछ जो रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ आवर ड्रग्स. सेकंड, द एफिकेसी ऑफ प्रैक्टिस. जैसे हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, रिड्यूस इंडिविजुअल बायस इन प्रैक्टिस. कुछ ऐसा टेक्निकल मिल जाए रिसर्च करके कि हमारा बायस, हमारा पर्टिकुलर थिंग वो कम होने लग जाए, हर एक का सेम आंसर निकलने लग जाए, कोई मेडिसिन निकलने इजी हो जाए. दैट विल हेल्प, दैट कैन गिव अ टेक्निकल एडवांसमेंट्स में हमें हेल्प मिल सकता है. सस्टेनेबल ग्रोथ. Sustainable growth means advancement is comprehensive and is tuned with other sciences.
नो साइंस कैन सस्टेन लॉन्गर अगर वो बाकी एरिया ऑफ जो फील्ड्स हैं साइंस के, जैसे योगा, अगर आप हेल्थ की लेंगे तो आयुर्वेदा और एनीथिंग, इनके साथ में ग्रो करता है। और अगर ये नहीं तो दूसरे एरियाज में करता है, सोशल साइंसेस, एवरीथिंग। अगर आप सबको लेके चलोगे, उसमें से कुछ ऐड किया जा सकता है, उनके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, कोलैबोरेट करके मॉडर्न साइंस और होम्योपैथी का साथ में कोलैबोरेशन करके उनकी रिसर्चेस की जा सकती है, देन इट इज वेरी सस्टेनेबल। हमको अपनी लिमिटेशंस, उनको अपनी लिमिटेशंस का पता चलेगा, देन वी कैन हेल्प कि आखिरकार पेशेंट की हेल्प हो जाएगी। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। देन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लाइक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एज ए होल। आप एजुकेशन सिस्टम, प्रैक्टिस, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, लिंक इंडस्ट्रीज, ये सब पे हो सकता है, इकोनॉमिकली सब फर्निश कर सकता है। जैसे आज हम कर रहे हैं, एक सेमिनार कर रहे हैं जिसके अंदर बुक्स भी हैं, पब्लिकेशन इन्वॉल्व है, जो फार्मेसी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इन्वॉल्व है, जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इन्वॉल्व है, जो स्टूडेंट है पढ़ रहा है कॉलेज वाला वो इन्वॉल्व है। सो दिस इज द वेरी बिग इंडस्ट्री। सिर्फ होम्योपैथी के अंदर एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर ही नहीं है और बहुत कुछ है उसके साथ में। तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है अगर आपके पास सही रिसर्चेस आती हैं। देन द एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन, जो भी रिसर्च आप करेंगे एनवायरमेंट के साथ, जो उसकी ऑब्लिगेशन है, जो उसकी लिमिटेशंस है, उनके साथ करना है। अदरवाइज इट्स अ वन वे स्ट्रीट कि आप बस उससे लेते जाओगे, देयर कैन बी इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। सो future of research can provide to a homeopathic field, that is, this is the era of evidence. To generate evidence you have to research. After research you have to publish. Publication will provide the attention of the right people towards the system, that is the government support. A better system will improve the lives of homeopathic doctors and hospital condition, and at last all this is for best clinical care, and this is for homeopathic field. And future that research can provide to an individual homeopath. For better research we have to master a huge literature. कितनी बुक्स है, मटीरिया, ऑर्गन, रिपर्टरी, इतना कुछ है पढ़ने के लिए। तो व्हाट इज एक्चुअली यूजफुल, जो अप्लाई होगा प्रैक्टिकली। रिसर्च हेल्प टू शॉर्टलिस्ट द यूजफुल कंटेंट फ्रॉम बुक्स एंड अप्लाई इफेक्टिवली व्हाट इज ऑथेंटिक एंड अवेलेबल। आप उसमें अगर आपका रिसर्च माइंड होगा, आपको पता है वो कहाँ से आई इंफॉर्मेशन, वो सही है, आपको उसको यूज कैसे करना है, ये आपका माइंड डेवलप हो जाता है। और जितनी जितनी नई रिसर्चेज आती हैं वो आपको उसमें हेल्प और करती हैं पुराना मैटर को पढ़ने में। उसके अंदर इट गिव्स आंसर्स टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फेस्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, एंड दैट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, एंड इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, मोर पेशेंट्स टू प्रैक्टिस एंड लर्न, you can handle difficult cases because you can say I have done a research, I have read a research that was done in that area, I can handle this. So a better practical learning of the literature, then at last same best clinical care. So this is done right now कि हमने क्या है रिसर्च, क्यों करनी है, then now how to do the research. This is first we are talking about prerequisites of a researcher. जो करने वाला पर्सन है, रिसर्च तो ऐसी होती है, होम्योपैथी में ऐसी होती है, ये सब कुछ हो जाएगा। जो सबसे पहले आप कोई इंसान करेगा तो सही ना, फर्स्ट जो करने वाला है, कौन इंसान जाके फर्स्ट स्टेप ले। तो फर्स्ट थिंग इज डिसाइड करो इफ यू आर capable of doing it or not. So prerequisite of researcher is fertile imaginative capacity, wide educational background, knowledge of own limitations, analytical and coordinating capacity, और फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। देन कॉम्पिटेंसी है, अगर इसमें से कुछ नहीं हुआ तो कितनी ही बढ़िया रिसर्च हो, वो कुछ ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा उसके अंदर। सो इट इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट ऑफ ऑलवेज अ फ्यू फर्टाइल इमेजिनेटिव कैपेसिटी, जिन लोगों की एनालिटिकल कैपेसिटी है, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं, एक टीम की तरह कर सकते हैं। देन और फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अवेलेबल होगा। ये सब कुछ चाहिए एक अच्छी सी रिसर्च करने के लिए। इंडिविजुअल एक पर्सन करेगा
बैठ के उसको पहले बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो इन सब लोगों का काम कर सकता है एज ए टीम का, लेकिन उसको ट्रेनिंग बहुत लेना पड़ेगा। लिटरेसी, research literacy is the ability to find, understand and critically evaluate research evidence for application in professional practice। पहले वो जितना लिटरेचर पहले वाला पढ़े, फिर proper selection of the topic, practically feasibility of that topic, knowledge related to other branches also, related branches, insight into the subject to understand the cause effect relationship, then the proper material आप जो यूज कर रहे हैं उसका सिलेक्शन रिजेक्शन, एंड लास्ट जो भी रिजल्ट मिलेगा यू हैव टू डिस्कशन, उससे आपको पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, अच्छा आया, नहीं आया, दैट यू हैव टू साइडलाइन, यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसीजर, और उससे जो रिजल्ट आएगा यू हैव टू एक्सेप्ट इट। देन एट लास्ट वी नीड अ capacity, that is literacy plus ability to conduct research. If you have all this in a researcher, you can start today. So we have found the researcher. Now what is characteristic of a research? For research, we need a clear statement of the problem, what we want to research on, क्या topic है जिससे काम करना चाहते हैं. Then second, establishing cause and effect relationship. ठंडा पानी पीने से जुकाम हो गया, इट इज एक थ्योरी है, पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता। सो वी हम बाद में इस पे रिसर्च करके देखेंगे कि ये इसके कॉज से ये इफेक्ट आया कि नहीं आया। ये जो इस्टेब्लिश करने की एबिलिटी है, बहुत कुछ पढ़ने के बाद में उसके लिए कैसा डिजाइन चाहिए, कैसी रिसर्च करनी पड़ेगी, कैसा सा उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, हाउ टू राइट इट, कैसा उसके लिए सैंपल लेने पड़ेंगे, कैसे पेशेंट्स देखने पड़ेंगे जिसमें ये चीजें मिले। सो एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए उसका रिसर्च का लास्ट एंड मुद्दा यही होता है कि हम रिसर्च से यही निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि इसकी वजह से ये हुआ, पहले बहुत सारा काम होता है। वो क्या होता है नेक्स्ट अपने सीखेंगे, पर रिसर्च यही चाहती है कि हम एक चीज का सवाल का डायरेक्ट आंसर ढूंढ रहे हैं। कॉज ये है, इसका इफेक्ट ये है, दिस इज द लास्ट थिंग और बेस्ट थिंग जो हम रिसर्च में मिलता है हमें। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ प्रेडिक्शन। अगर किसी चीज से डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता तो हमें उसका एक प्रेडिक्शन मिल जाता है। लाइक आई हैव सीन 100 पेशेंट्स, 100 में से मुझे 70-80 के अंदर ये मिला कि भाई ठंडा पानी पीने से उनको जुकाम हो रहा था, तो आई हैव डन कि भाई मेरे पास 80 पेशेंट्स में ऐसा मिला। लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, इन 30 पेशेंट्स मुझे ऐसा मिला हो, तब तो एक मुझे मिलेगा कि भाई 30 पेशेंट्स से मिला, 70% लोगों में नहीं मिला, इट इज अ रॉन्ग थिंग, ऐसा नहीं होता। 50-50 भी हो सकता है। तो 50-50 मीन्स देयर इज सम फैक्टर्स। देन अगर ये हो गए, ठंड के अंदर अगर ठंडे पानी से पिया तो ज्यादा हुआ, लेकिन गर्मी में अगर पिया तो नहीं हुआ। सो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या होता है, एक थ्योरी बना, कंफर्मेशन तो नहीं बना, एक थ्योरी बना उससे। तो ये नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उससे क्लियर कट डायरेक्ट दिस इज इक्वल टू दिस अगर नहीं मिलेगा तो जो भी मिला दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। दैट अगर वो 100% मिला कि 100 to 100 टाइम्स ऐसा हो जाता है, दैट्स अ प्रिंसिपल। इफ अगर वो नहीं होता 100 to 100 टाइम, अगर हमको मिला 100 केसेस में ऐसा कैसा मिल गया, दैट इज जनरेशन ऑफ अ प्रिंसिपल। अगर ऐसा नहीं है तो प्रेडिक्शन मिल जाएगा कि ऐसा होता है उसके अंदर, और ये अपने को रिसर्च से हेल्प मिलता है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भाई उससे ये अपने को मिलना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, एम्पेरिकल एविडेंस, वहां से आना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे से बनना चाहिए। वैलिड रिसर्चेस रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल evidence. This evidence comes from systematic observation, experiments, and empirical data collection, ensuring the findings are grounded. Next, we are talking about careful recording and reporting. If everything is done very beautifully, but is not recorded properly, then it's no point. It is spoiled. Maybe उसमें कुछ गड़बड़ है, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिया, यहाँ errors कहाँ आएंगे, we cannot identify that. So
it should be recorded and reported carefully. Then with patience and unhurried activity, कुछ भी हो, कितनी भी deadline हो, you have to do it every step thoroughly. Then only you can find exact results. Otherwise, there is an inaccurate result. Purpose to serve mankind. कुछ improve ही होगा, कुछ better ही होगा. There is no point of doing anything, इतना work, इतना resources, इतना सब कुछ लगाने का कि अगर उससे कुछ better ही नहीं हुआ. Then coverage and social disapproval. If anything comes, कुछ रिजल्ट आपने इतना बढ़िया कुछ रिसर्च किया और उसमें कुछ रिजल्ट में ऐसा आ गया जो नहीं चाहिए, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हमारी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. आपको बताना पड़ेगा कि इस रिसर्च में पॉपुलर बिलीव्स के अगेंस्ट ये रिसर्च में मिला है. दैट ऑल्सो, तो रिसर्च को एक कवरेज दिया जाता है कि अगर इससे कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आता है तो भी आपको पब्लिश करना है, दिखाना है. यू कैन नॉट हाइड इट. So this were the characteristics. Now we are talking about types. What type of researchers we have? For a easy understanding, there are many type of researchers. जैसे मैंने बोला था कि एक bigger circle है research का, फिर एक health का research का, then we have a smaller circle of homeopathic research. तो इन होम्योपैथिक रिसर्च पहले वहां तक पढ़ने के लिए कि आप जब भी नेट पे कुछ सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा. मतलब इतनी तरीके की रिसर्चेस मिलेंगे कि ये होती है, these were the types, these were the these designs, techniques. बहुत कंफ्यूजिंग मटेरियल होगा. फॉर स्टार्टिंग पॉइंट कि आपको कुछ नहीं पता रिसर्च के बारे में और आपको यू वांट टू लर्न इट, देन जस्ट कैटेगराइज इन 3 points. First type is exploratory. Second is descriptive. Third is explanatory. Every research you will find on any area. These were in broad terms divided into 3 types. That is, first is explore. Explore is like आप जैसे किसी इसका पर्पस ये होता है कि एक अंधेरा कमरा है और आपने एंटर किया है, लाइट ऑफ है और आपको कुछ नहीं पता कि वहां क्या है. तो यू विल स्टार्ट टैपिंग विद योर फिंगर्स. ये है, आई कैन वॉक, आई कैन फील दिस, आई कैन फील दैट, बट दिस इज नथिंग. कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उस एरिया के बारे में. देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. किसी भी टॉपिक के बारे में नया भी हो सकता है, कोई नया एंगल भी हो सकता है. देयर इज नथिंग जो अभी तक उस एरिया के बारे में हमें पता हो. और कहाँ से अपने ये फिर जब ये रिसर्चेस करते हैं तो कहाँ से आता है? रिव्यूज, पुराना जितना अगर उससे रिलेटेड कोई लिटरेचर अवेलेबल है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, फोकस ग्रुप से लेते हैं. ये हम आइडियाज लेते हैं और उससे कुछ नया एक आइडिया, एक इंसाइट्स बनाने की कोशिश करते हैं. दैट कैटेगरी ऑफ रिसर्चेस is called exploratory. It's starting point of any researches. So in homeopathy, like I've given an example, ki how does homeopathic medicine act? This is still an exploratory question. कैसे कर रही हैं? Many researchers have come, but still we are adding up कि कैसे explore हो रहा है अभी तक. We don't know anything for sure. So this is exploratory. Second, we were talking about descriptive. डिस्क्रिप्टिव इज, जैसे मैंने बोला कि आप किसी कमरे में घुसे थे, वहां सब अंधेरा था और आप यू वर जस्ट एक्सप्लोरिंग बाय योर फिंगर टिप्स और कुछ भी पता चल रहा था. नाउ यू आर डिस्क्राइबिंग कि मुझे वहां क्या मिल रहा है. देयर इज अ समथिंग, देयर इज अ चेयर लाइक थिंग, देयर इज सम, आई थिंक कि यहाँ पे कोई बेड है, आई थिंक यहाँ पे कोई टेबल है. तो आप जस्ट उसको डिस्क्राइब कर रहे हो उस चीज को समझ के. सो इन रिसर्चर्स व्हेन फर्स्ट स्टेप इज टेकन कि एक्सप्लोर हो चुका है, देन जो एक्सप्लोर हुआ है आप उसको डिस्क्राइब करते हो. व्हाट इज, व्हाट क्या है, प्रोवाइड द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. और वो होता कैसे? जैसे केस स्टडीज से, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से, सर्वे से. लाइक एग्जाम्पल इन होम्योपैथी, लाइक इफेक्ट ऑफ एंटीडोट. आप ये बोलेंगे कि भाई ये कैसे डिस्क्राइब करेंगे. टिल नाउ कोई भी जो टॉपिक होगा जो होम्योपैथी में आप
एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, होम्योपैथी में किसी कैटेगरी में डालने की कोशिश करेंगे। दिस इज स्टिल अ न्यू फील्ड, अभी तक हमको बहुत सारा काम नहीं हुआ है, स्टार्टिंग है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ने की कोशिश करोगे अपने बुक्स में से या कहीं से भी, तो बहुत क्वेश्चंस आएंगे कि ये एक्सप्लोरेटरी है, ये डिस्क्रिप्टिव है, या नेक्स्ट एक्सप्लेनेटरी है, ये क्या है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले वाली अगर एक्सप्लोर वाली होती तो ये क्या टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ एंटीडोट, तो इट मीन्स कि कुछ तो इफेक्ट होता है, इसका मतलब कि ये इंफॉर्मेशन तो अभी तक इसमें आ गया है, तो एक्सप्लोर करने वाला तो है ही। हाँ, आगे है उसके अंदर कि डिस्क्राइब करने वाला कि भाई एंटीडोट का इफेक्ट कैसे आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दैट विल बी हेल्पफुल। दैट्स व्हाई आई पुट दिस इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस होती हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेटरी। नाउ वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि भाई this is was the explore किया, then I am describing about it, what is happening। जब हम सेकेंड स्टेज पे हैं डिस्क्राइब करने वाली, that is not giving any answer about why this is happening or how this is happening। The next step, the explanatory, will give you that answers, that why and how that was happening। और यहाँ आके the focus जो इसका होता है on understanding the cause and effect of a relationship। ये जो हम कर रहे हैं दैट वी डू इन आवर क्लिनिक्स, जो हम केसेस देखते हैं कि भाई इस मेडिसिन से ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। वी टेक 100 केसेस, एसिटीज वगैरह जो हम कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, दैट फॉल इन दैट कैटेगरी। पर ये कब हुआ, जब इससे पहले का सारा काम हो चुका है, कि हमने देखा है कि भाई थूजा से वॉट्स पे असर आ रहा है, दैट इज डन एक्सप्लोर डिस्क्राइब बाय आवर ओल्ड रिसर्चर्स, देन वी आर कंफर्मिंग इट बाय एक्सपेरिमेंट। तो जब एक्सप्लेन किया जा रहा है उसके अंदर, तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आएगा। I put an example, that is homeopathy in HIV infection, a trial reported of a double-blind placebo-controlled study। इस तरीके का नाम आपको जो भी आप होम्योपैथिक रिसर्च सर्च करेंगे तो बहुत सारा मिलेगा। दैट इज दिस एक्सप्लेनेटरी कैटेगरी। सो इन ब्रॉड टर्म, वेरी ब्रॉड टर्म्स, आई हैव गिवन यू अ चार्ट। जितनी तरीके की आपने आज तक रिसर्चर्स के नाम सुने होंगे, ब्रॉड, जैसे आप सर का बोला था कि रिसर्च का, फिर हेल्थ रिसर्च का, फिर उसमें होम्योपैथिक रिसर्च का, तो है जब आप भी कुछ नेट पे सर्च करेंगे, बुक्स में से पढ़ेंगे, तो अभी तक क्योंकि हमारा एरिया नया है तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट टाइप रिसर्चेस, जिस मेरे को अपना जो टॉपिक है उसमें कौन से वाला यूज करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। तो जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा, आई हैव पुट दैट इंफॉर्मेशन इन दिस, कि अब अगर इस तरीके का है, ये आरसीटी है, तो वो एक्सप्लेनेटरी वाले में होगा। एक्सप्लेनेटरी का दूसरा नाम एक्सपेरिमेंटल भी है और इंटरवेंशन भी है। डिस्क्रिप्टिव का दूसरा नाम ऑब्जर्वेटरी मेथड्स में भी आता है, ऐसे करके। सो दिस इज द मेन टाइप। आई हैव गिवन अ प्री क्लिनिकल एंड स्टडीज ऑफ स्टडीज एंड मिक्स मेथड। दिस एक नया चार्ट बनाया है। दिस इज नॉट 100% ट्रू। द प्री क्लिनिकल कैन बी एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे हो सकता है, स्टडीज ऑफ स्टडीज ऑब्जर्वेटरी स्टेज पे हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव स्टेज पे हो सकता है। बट आई हैव गिवन कि थोड़ा सा कि ये तरीके का उसमें होता है। तो मेन द 3 टाइप्स इज दीज टाइप्स। तो जितने तरीके का इसमें आपको ये एग्जांपल्स मिल रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपका एक दिमाग में आइडिया आएगा, अच्छा ये हो रहा है तो इसमें ये इंटरवेंशन हो रहा होगा, ये एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सप्लोरेटरी हो रहा होगा। दैट विल हेल्प यू टू गाइड। और जो नया बनाएंगे आप, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका फ्रेमवर्क बनाना ईजी है, क्योंकि हर रिसर्च टाइप का एक पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क अलग होता है। उसके अंदर जैसे डिस्क्रिप्टिव है, तो उसके अंदर अगर सर्वे हो रहा है तो डिस्क्रिप्टिव का सर्वे करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट अलग से होता है इसके अंदर। तो दैट इज, लेकिन अगर वो सर्वे वाला इधर भी आ सकता है, जैसे एक्सपर्ट सर्वेज होता है, तो एक्सप्लोरेटरी में अगर वो हो रहा है तो उसका मेथड कुछ अलग होगा, उसका फॉर्मेट कुछ अलग होगा। तो दिस इज द बेसिक जो अभी तक हमने बात किया। अभी जो वर्ड है प्री क्लिनिकल जो यूज किया है, ये मैंने यहाँ इसलिए डाला है अलग से कि लगभग जो रिसर्चेस, प्री क्लिनिकल का मतलब होता है जो रिसर्चेस लैब में हो रही होती हैं, एनिमल्स में होती हैं, प्लांट्स पे होती हैं, ह्यूमन पे अभी तक नहीं आया है उसके अंदर। तो ये वाली एक्सप्लोरेटरी स्टेज की भी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव वाली भी हो सकती है। बट आई पुट इट इनसाइड कि भाई ऐसा होम्योपैथी में है
कि प्री क्लिनिकल, इसको मान लो क्लिनिकल, और स्टडीज ऑफ स्टडीज, जो स्टडीज आज तक हो चुकी हैं। मान लिया कि फाइब्रॉइड पे 10 रिसर्चर्स, 50 रिसर्चर्स, 100 रिसर्चर्स मेरे को मिल गया नेट से, और मेरा कुछ नया क्वेश्चन है कि भाई फाइब्रॉइड पे होम्योपैथी में कितने परसेंटेज रिजल्ट मिलता है। तो आई विल टेक आउट दैट 100 रिसर्चर्स and study all the researches. Then after studying that researches, I will review that and give an answer. That is a type of research we will talk about. Okay, तो ये इसमें भी हो सकता है, इन सब कैटेगरीज के नीचे भी आ सकता है, बस I given a side. Then mix method, there is a new कि कुछ भी 2 मेथड या 3 मेथड मिक्स भी हो सकते हैं. That is other type. So next I am giving you some example. जैसे बोले कि एग्जाम्पल ऑफ द रिसर्चर्स, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च, देन उसकी क्वेरी क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, उसमें किस टाइप का रिसर्च बन गया और उसमें कौन सा टेस्ट लग रहा है. दिस इज आई गिवन टू बाय बुक बाय डॉक्टर नरेंद्र नारायण चट्टोपाध्याय सर. हिज बुक इज गिवन दिस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. दिस इज वेरी हेल्प फॉर अ न्यू पर्सन, न्यू स्टूडेंट, MD स्टूडेंट और BHMS 4th ईयर स्टूडेंट, सब जब उनको उनकी सिलेबस में आ जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस विल गिव यू एन आइडिया. क्योंकि ये जो है, ये इंफॉर्मेशन इस बुक के अलावा मुझे कहीं नहीं मिला है. एक होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है एक आइडिया क्रिएट करने के लिए. दिस विल हेल्प यू. देन वी नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ रिसर्चेज इन होम्योपैथी. टिल नाउ वी हैव लर्न कि जनरल रिसर्च में 3 टाइप की रिसर्चेस होती हैं, होम्योपैथी में इतने तरीके की मिलेंगी. द टाइप ऑफ रिसर्च कॉमनली जो ऑलरेडी होम्योपैथी में हो रहा है अभी तक, बहुत कुछ हो सकता है. दिस कैन, इतना कुछ हो सकता है और थोड़ा सा अभी कुछ हो रहा है, लिटिल बिट. दैट इज क्लिनिकल, लेबोरेटरी, हिस्टोरिकल, एपिडेमोलॉजिकल, सिस्टमेटिक रिव्यूज. जस्ट आपको आइडिया दे दिया मैंने कि ये अभी तक हो रहा है. ओके, और बहुत कुछ है. These of studies कि और क्या है. जब आप CCRH की बुक्स, NCH की बुक्स जो हैं, CCRH का पूरा पब्लिकेशन है, जितनी भी रिसर्च से रिलेटेड बुक्स हैं, आपको दिखेगा कि ये तरीके की रिसर्चेस उसमें अवेलेबल हैं अभी तक जो हो रही हैं. इसके अंदर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग हो रहा है, ड्रग प्रूविंग हो रहा है, क्लिनिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, वैलिडेशन हो रहा है, कुछ लिटरेरी रिसर्चेस हो रही हैं. This is already been right now at present ये हो रहा है. Now the steps we were talk about कि steps in the development of a research. Very basic idea, very basic idea. अगर आपको कुछ रिसर्च करना है तो सबसे पहले you have to ask. अभी बहुत सारा कुछ हमने कवर कर लिया, इसमें सेम चीज, आपको थोड़ा सा और हेल्प मिलेगा. Question to be asked first, what are the problems and what type of study or research जो आप करना चाहते हैं. ये आपको, अगर ये आपके दिमाग में सवाल फर्स्ट ही आएगा, then you have to, according to that, step should be taken is selection, analysis and statement of the research question. Then next step, the problem identification, prioritize the problem, analyze और justification उसका. तो ये उसमें एक एक स्टेप. नेक्स्ट अगर आप लोगे तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, जो आपको लिटरेचर रिव्यू से मिलेगा. लिटरेचर रिव्यू से आपको इंफॉर्मेशन ये कैरी करना है. नेक्स्ट, व्हाई डू यू वांट टू कैरी आउट रिसर्च, व्हाट डू वी होप टू अचीव इसके अंदर. तो जो ऑब्जेक्टिव्स, क्या आप करना चाहते हो, तो ये मिलेगा कैसे. पहले आप किसी टॉपिक के बारे में सोचोगे. जैसे मैंने बोला कि फाइब्रॉइड, तो फाइब्रॉइड से अभी तक क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. फिर मैं ये देखूंगी कि भाई मैंने इसी पे क्यों करना है, कुछ और भी मेरा क्या मोटिव है. जो आज तक फाइब्रॉइड पे रिसर्चेस हो चुकी हैं, कुछ अलग भी तो करना है, नया ही तो करना है. तो ऑलरेडी जो हो चुका है पहले मुझे वो देखना पड़ेगा कि ये तो हो चुका है. नाउ वी हैव टू फाइंड अ न्यू ऑब्जेक्टिव. उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस फॉर्म करना पड़ेगा. हाइपोथेसिस इज अ डिफरेंट वर्ड, विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्लास, किसी और क्लास में बात करेंगे. दिस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक कि बस एक थ्योरी बनाना है कि हाँ ये मेरा आज में ये करना चाहता हूँ. नेक्स्ट, व्हाट एडिशनल डेटा वी नीड टू मीट आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. जितना डेटा अवेलेबल है, क्या उससे मेरा ऑब्जेक्टिव बन रहा है या नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ वो उससे हो रहा है, और वी नीड हैव टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन. तो रिसर्च मेथोडोलॉजीज,
कि कैसे कैसे रिसर्च करते हैं, कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव था दैट आई हैव टू फाइंड आउट कि इन व्हाट टाइम यूट्राइन फाइब्रॉइड कवर होता है। तो आज तक जितनी रिसर्चेस हैं, आई हैव 50 रिसर्चेस, किसी ने टाइम मेंशन नहीं किया। किसी ने लिखा है विद इन 3 months, किसी ने लिखा है विद इन 2 years और 5 years। सो व्हाट इज द रियल टाइमलाइन? तो मैं अगर ये क्वेश्चन लेके अगर आपका रिसर्च करूंगी, व्हाट डेटा अभी तक जो अवेलेबल है और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे टाइम देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना रिसर्च बनाना पड़ेगा। दैट जो बनाना पड़ेगा, दैट विल बी डन बाय रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें डेटा कलेक्शन, टेक्निक, सैम्पलिंग, एवरीथिंग इज विल इंक्लूडेड इन दिस। देन हाउ विल, कैसे करोगे? वर्क प्लान पूरा। देन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के लिए बजट कहाँ से आएगा? देन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल प्लान कैसे बनेगा, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, एवरीथिंग इज डन। देन लास्ट जो फाइंडिंग्स आ चुकी हैं उसका एक समरी प्रोजेक्ट बनेगा, देन इट इज पब्लिश्ड। दिस वर द स्टेप्स। सो इन होम्योपैथी नेक्स्ट स्टेप इज, अभी तक हमने जो पढ़ा एक सेक्शन के बारे में, सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ओवरव्यू ऑफ दैट, एंड सेकंड वी वर टॉक अबाउट कि बायोस्टैट सेक्शन था जिसमें हम कुछ एनालिसिस कर रहे थे। तो एनालिसिस हो किस पे रहा है, रिजल्ट आ कहाँ से रहा है? रिजल्ट अभी तक तो हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों करना है, क्यों नहीं करना, क्या होता है और कैसे कर रहे थे, एक पूरा मेथड, एक फ्रेमवर्क भी बना दिया। देन द रियल डेटा जिस पे एनालिसिस होता है वो कहाँ से आता है? हम जो केस टेकिंग कर रहे हैं उसमें सीरियल नंबर हम पूछते हैं, पेशेंट का आएगा, जब हम ओपीडी देखते हैं ओपीडी नंबर, पेशेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उसमें लिखते हैं। देन द रियल डेटा दिस, जब उसका एज, जेंडर, एड्रेस, लोकेलिटी, ये ऑल दिस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, एवरीथिंग, ये सब कुछ पूछते हैं। ये सब कुछ बाद में एनालिसिस होता है। दिस इज द रियल डेटा जहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। डिजीज नेम, मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब की, इवन पोटेंसी, व्हाट स्केल वी हैव गिवन, व्हाट डोजेस वी हैव गिवन, व्हाट टाइप, व्हाट सिम्टम्स, 1 2 3 5 7 10 जितने भी सिम्टम्स हमें मिले थे, द काउंट ऑफ सिम्टम्स। इन द फर्स्ट जब हमने केस स्टार्ट किया, वी हैव 10 सिम्टम्स। इन फर्स्ट फॉलोअप आई हैव 8 सिम्टम्स। आफ्टर 2 months 3 months और लास्ट फॉलोअप जो भी है उसका जैसा भी केस था, आफ्टर 1 year आई हैव ओनली 2 symptoms और 1 symptom. This is the way of showing the improvement, that I have started from 10 symptoms and now I have 2 symptoms. This is the real data जिस पे एनालिसिस होगा. This is the one category. Then other की जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, एनीथिंग, MRI, एनीथिंग जो भी आता है उसके अंदर, वो सब जो रिपोर्ट्स हैं उस पे, जैसे कि सीबीसी, ESR वगैरह जो हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे WBC, RBC जो भी लिखा है उसका एक नंबर होता है सामने, व्हाट काउंट ऑफ RBC, WBC और TLC। दिस नंबर इज, जब हमने स्टार्ट किया था तब कितना था, स्टार्टिंग में HB इतना था जी, लास्ट में HB इतना है। तो दिस इज द डिफरेंस। वी विल कैलकुलेट और कुछ ना कुछ इसमें मैथ्स लगाएंगे, कुछ फॉर्मुलेज लगाएंगे, देन वी विल डिफाइन दैट इट इज द वे टू शो द इम्प्रूवमेंट। सो ये डेटा है। This is the quantitative data. I have put some word quantitative because it is a number. We are giving a quantity. Like test है, MP test, Montauk test. This हम बोलते हैं कि मलेरिया पॉजिटिव है, टाइफाइड पॉजिटिव है या नहीं, उसके अंदर Montauk, सॉरी, ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है कि नहीं। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव में लिखा होता है ये डेटा। दिस इज क्वालिटेटिव डेटा। देयर इज अ वे in statistics to analyze this also. So this is very also included in the data. And then Vidal test, typhoid, जहां हमारा नंबर्स भी होता है, उसका चार्ट बनता है एंड पॉजिटिव नेगेटिव भी पता चलता है। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल कि हम रियल डेटा हमारे पास आता कहां से, जिसपे ये सारा कुछ लगेगा। दिस और बहुत तरीका है। दिस इज द बेसिक थिंग जो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी देख सकता है। देन लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज। इतना कुछ है तो डिफिकल्टीज कहाँ है? डिफिकल्टीज है, वी हैव ए एक्सटेंड क्वेश्चन ही हमारे पास ये है कि होम्योपैथी काम करती है कि नहीं। सो वी आर इन वेरी स्टार्टिंग पॉइंट कि हमको अपने आप को प्रूव करना है कि वी एग्जिस्ट। देन लिमिटेड, वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, बट दैट it is divided into two parts, that we have to prove it
to other sciences, to modern world, to modern science, but still we have to improve it for ourselves. जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, हमारी मेडिसिन ऐसे काम कर रही है, इफ वी पुट ऑल द रिसर्च, ऑल द मनी, all effort just proving to the world that homeopathy works, there is no point. वो तो कर ही रहा है, but इसलिए दोनों तरीके का काम होता है, to prove it and to improve it, but because of that दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, the funds, the energy, the resources divides, so प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाता है. दिस इज अ बिग डिफिकल्टी. अगर एक जगह हो जाएगा to improve the health of a patient, this is the basic funda of a research. अगर patient ही नहीं improve हो रहा, then what's the point of doing any medical research, health research? Then there is a lack of scientific training. What we are talking today, क्या करना है, कैसे करना है, किसको फॉलो करना है, बिगर क्वेश्चन. प्रेजुडाइज माइंड, व्हाट अभी तक जो हमारे बिलीव्स हैं होम्योपैथी के अंदर, कितनी बुक, कितने तरीके के थॉट्स हैं, many type of books, materia, organ, repertory, so many line of prescribing. So there is a prejudiced mind. अगर कुछ नया रिसर्च आएगा उसको लेने के लिए, to take up and then to work on it, we have a fixed mindset. अभी तक उसको इतना ओपन ही नहीं लेते हैं. Then policy demands evidence in modern set formats, कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसको दिखाने का, उसको पब्लिश करने का, उसको प्रूव करने का एक जो फॉर्मेट सेट है वो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग नहीं है. हमको बहुत कुछ उसमें से निकाल के उनकी लैंग्वेज में उनको बताना पड़ता है. हमारी लैंग्वेज में जो है, हम अपनी लैंग्वेज में, वाइटल फोर्स वर्ड कहीं यूज ही नहीं हो सकता है ऐसे करके, तो उसको कन्वर्ट करना, कि हमारे पास एविडेंस है लेकिन उसको कन्वर्ट करके उनकी लैंग्वेज में फॉर्मेट देना, दैट्स द बिगेस्ट टास्क. Then insufficient interactions between the research institutions, जो कर रही हैं वो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. ऐसा बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है कि वो साथ में कोलैबोरेट करके वर्क करें. डुप्लीकेशन है रिसर्चर्स की, कोई रिसर्चर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, क्या वो अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है. देन देयर इज अ मिसमैनेजमेंट इन द पब्लिकेशन, लाइब्रेरी ढंग से नहीं है, बिल्ड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, देन भी है हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है. इतना एनर्जी बट गया है कि यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं. व्हाट वी एक्चुअली नीड इज हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स, दैट वी हैव, हमारे पास नहीं है. लार्ज सैंपल साइज ट्रायल्स नहीं है. देयर इज अ पब्लिकेशन बायस, कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिसर्चेस ही पब्लिश होता है जो बाकी नहीं होती, भले वो कितना ही अच्छा काम है. तो देयर इज अ लिमिटेड एरिया ऑफ पब्लिकेशन, वो वहाँ प्रॉब्लम आता है. डिफिकल्टी इन लिंकिंग मॉडर्न रिसर्च एंड होम्योपैथिक रिसर्च, that we have talked about earlier also, कि भाई there is a big gap, there is a बहुत बड़ा, जैसे बोला कि एक रिसर्च बहुत बड़ा था, उसमें से हेल्थ रिसर्च था, उसमें से होम्योपैथी रिसर्च था, तो उसमें से लिंक करना, that is the biggest problem. And to maintain the global guideline for clinical research, that is also an issue. Why this is the issue? Global guideline में clinical research करते हुए, जब हम क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं तो हम प्लेसिबो जो दे रहे हैं उसके अंदर प्लेसिबो ग्रुप अलग होता है, मेडिसिन का ग्रुप अलग होता है. और मेडिसिन वाले ग्रुप को जैसे 30 डेज हमें मेडिसिन देना है, और प्लेसिबो वाले ग्रुप को 30 डेज सिर्फ प्लेसिबो ही देना है. लेकिन इन होम्योपैथी हमारा बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि हम फर्स्ट डे तो उसको एक डोज दे देंगे, देन वी विल फॉलो अप बाय प्लेसिबो. तो हम इसी मेडिसिन वाले ग्रुप के अंदर बाद में प्लेसिबो ऐड कर रहे हैं. बट इन मॉडर्न साइंस द प्लेसिबो ग्रुप विल बी डिफरेंट, उनको मेडिसिन नहीं मिलना चाहिए. सो दिस इज अ ग्लोबल गाइडलाइन जिसमें दिक्कत आती है, एंड मेनी अदर इश्यूज ऑल्सो. दिस इज अ बेसिक जो हमको समझ में आता है कि भाई ये एक इशू है जो हमारी वाली लाइन के लिए कुछ अलग गाइडलाइन होना चाहिए. रिसोर्सेज एंड फंडिंग एवरी टाइम. देन व्हाट्स द सॉल्यूशन? Solution is first, promote of homeopathic research in conjugation with homeopathic practice. Second, more scientific trials. स्टूडेंट को अवेयर करना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को साथ बड़े बड़े लेवल की रिसर्चर्स को लेना पड़ेगा. इंसेंटिव्स फॉर रिसर्चर्स टू डू इट, फंड्स, देन रिकॉग्निशन, फैसिलिटीज, लास्ट एक्सपोजर. आप किसी को नॉलेज दे दो, देन उसको फैसिलिटीज दे दो वो काम करने की,
जब उसने वो काम कर लिया, यू रिकॉग्नाइज दैट गुड एफर्ट, गुड रिसर्चेस, देन एक्सपोजर, उसका बड़े लेवल पे एक्सपोजर हो रहा है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सो दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट फॉर दिस स्लाइड्स. आई इतनी these were my references, यहाँ से मैंने लिया है इनका डेटा. एंड कुछ कोई बुक्स पढ़ना चाहता है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, ये बुक्स हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट कि ये बुक्स हैं जो CCRH रिकमेंड करते हैं. वहाँ इसकी कुछ की बुक्स भी अवेलेबल हैं, कुछ के PDF अवेलेबल है, आप उसको सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली. ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है. ये कुछ बुक्स हैं जो बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए है, यू कैन फाइंड इट इजीली ऑन नेट ऑल्सो. These are some web resources we are talking about कि यहाँ आप देखिए और you can find starting point कि कुछ आइडिया आपको मिलने लग जाएगा. एंड ये एक मेरा पर्सनल चैनल है जिसमें मैं कुछ वीडियोस डाली हुई हैं हिंदी में, ऑडियो फॉर्मेट में ही है. जिसको कोई आइडिया नहीं है, यू कैन टेक अ लिसन क्या है इसके अंदर. पूरा मैंने MD का फर्स्ट ईयर का सिलेबस डाला हुआ था और आई हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम अदर बैच, उनका मैंने ऑडियो डाला हुआ था. क्लासेस हैं पूरा, यू कैन कि एक गो थ्रू हो जाएगा. अगर आपको किसी कोई भी टॉपिक है, राइट नाउ यू वांट टू लिसन टू एनी टॉपिक, गो टू दिस टॉपिक चैनल. दीज आर सम बुक्स जिसके अंदर मुझे लगता है कि स्टार्ट करने के लिए किसी को कुछ नहीं आता, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस बुक्स. बहुत इजी है इसके अंदर. दिस आई विल रेकमेंड पर्सनली, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी इन होम्योपैथी. ये मुझे सिंगल बुक मिला है जिसमें एग्जाम्पल्स होम्योपैथी के यूज हुए हैं. जहाँ मैंने भी जो होम्योपैथी के एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसी बुक से निकाले हैं मैंने. बाकी जितनी भी बुक्स आपको मिलेगी वो जर्नल रिसर्च की मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बोला आपको रिसर्च डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, उसके लिए बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं. कोई सोशियोलॉजी की लिख रहा है, कोई हिस्ट्री की लिख रहा है, या कोई आर्ट्स की लिख रहा है. तो वहां पे जनरल रिसर्च के बारे में लिखने वाली बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन होम्योपैथी रिसर्च के लिए स्पेसिफिकली लिखी हुई बुक मुझे ये एक मिली है. और जो CCRH ये है जो पब्लिश कर रहा है, वहां से भी हेल्प मिलेगा आपको उसके अंदर. दिस विल हेल्प यू फॉर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स. फॉर टुडे, थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you so much for enlightening us with the wonderful session. Respected participants, the session is open for question and answer session. You are all welcome, actually. Ma'am, there is a question from one participant, ma'am. विलेज के पीपल को कैसे समझाना मैम होम्योपैथी क्यूर के बारे में? विलेज के पीपल को कैसे समझाना, क्या हाँ जी. समझाना कि होम्योपैथी कैसे काम करता है? हाँ जी मैम. जी जी मैम. Okay, this is a very good question. उनका बोलना खाना कैसे काम करता है. हाँ, अगर आप खाना खाते हो तो वो बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है. यू ईट फूड, इट इज आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, यू फील एनर्जेटिक. कहाँ से आया? हाउ योर बॉडी इज वर्किंग, हाउ योर हैंड्स आर मूविंग, कहाँ से आएगा? कुछ तो कुछ वो जो कन्वर्जन होती है बॉडी की, कि एक सॉलिड फूड से बॉडी में एसिमुलेट होने के बाद में एक एनर्जी में ATP कन्वर्जन हो जाता है. देयर इज अ ब्रेकेज. तो एनर्जी जब किसी एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होके और बॉडी में ऐसे दिख रही है, खाने में ताकत होगी तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है उसके अंदर से. बहुत बेसिक लेवल का पोटेंटाइजेशन हो रहा है एक्चुअली में. तो अगर आप किसी लेमैन को बताते हो कि होम्योपैथी काम कैसे कर रही है, तो उनको बोला कि भाई ये स्मॉल पिल्स है, जैसे नमक होता है, आप थोड़ा सा नमक लो और इतनी सारी चीनी लो उसके अंदर. तो किसी चीज की तासीर के हिसाब से उसकी अमाउंट डिसाइड होती है और उसका वर्किंग काम, कि आप थोड़ा सा नमक लेते हो तो बॉडी में जाके कैसे BP बढ़ रहा है, कैसे ब्लड में जा रहा है. वो जाला तो आपने मुंह में, लेकिन वो ब्लड तक पहुंच गया, कैसे गया पेट में, कैसे वहां से ब्लड में गया, कैसे आपके यहाँ पे आया, कैसे ट्रांसफर हो गया वहां तक पहुंचने के लिए. तो एक तो इसकी अमाउंट पे क्वेश्चन रहता है कि भाई ये इतनी सी कैसे है, इतनी सी अमाउंट में कैसे दी जा रही है. हम तो एलोपैथी खाते हैं या कोई और खाते हैं, इतनी इतनी दवाइयां होती हैं. तो दो बेसिक आंसर ये होता है कि नमक आप इतना लेते हो, चीनी आप इतनी लेते हो, वाई? इतना सारा नमक ले लो ना और इतनी सी चीनी ले लो. तो अमाउंट से डिसाइड नहीं होता, उसकी
तासीर से डिसाइड होता है कि वो कितनी मात्रा में लेनी है। तो हमारी जो मेडिसिन है वो इतनी मात्रा में ही ली जाती है, और जब बॉडी में जाती है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे बॉडी में अब्सॉर्ब होगा, वो नर्व से होता है या पेट से होता है। इतना समझाओगे, इतना उनको डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन इतना समझा दोगे कि जैसे खाना काम कर रहा है आपकी ब्लड में जाके, वैसे होम्योपैथी काम कर रही है उसके अंदर, कि वो ब्लड आपके बॉडी में जाके आपको एनर्जी दे रही है। बस दिस इज द बेसिक आंसर, जो मुझे लगता है एक अनपढ़ आदमी भी समझ लेगा। Very well explained, ma'am. Any other question? I hope. Any other questions from the participant? They can put it in the chat box. Meanwhile, I will show you something. Start करने के लिए you can refer to this website. Is it visible? Yes, ma'am. This is the Ayush research portal. In that area, you can click on this homeopathy, and you will find some researches here. तो इसमें क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, ड्रग रिसर्च, फंडामेंटल, एवरीथिंग देखा मैंने, बोला ना, और ऐड हो गया इसमें नया वर्ड, ड्रग रिसर्च हो गया, प्री क्लिनिकल अलग हो गया, क्लिनिकल अलग से हो गया। दिस इज द स्पेसिफिक एरिया, नए नए वर्ड्स आएंगे। तो यू वांट टू लर्न इट, जहां पे क्लिक करो, कुछ भी करो, उसके नीचे और बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपको मटेरियल देखने के लिए। फॉर स्टार्टिंग कि आपको हेल्प मिलेगा इसके अंदर लिखना, दिस विल हेल्प यू कि भाई नई रिसर्चेस देखने में। दिस इज वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, नॉट बिग, बहुत ज्यादा कुछ नहीं डाला गया है, तो लेकिन एक आइडिया जरूर मिल जाता है इससे, जिसको कुछ नहीं पता कि कहाँ से ढूंढूं, गूगल पे सर्च करूं, कहाँ क्या देखूं, क्या हो रहा है। Sure, ma'am. Actually, there is a question which is out of it, ma'am. One student is one participant is asking, second year students को पैथोलॉजी के बारे में कुछ गाइडेंस दीजिए मैम, like how to read and how to tackle the mnemonics and all. I hope so, ma'am. इन माय टाइम मुझे याद है, मैंने इतना पढ़ा कि मुझे ड्रीम्स आने लग गए। तो ड्रीम्स में मैम आई वाज डूइंग पैथोलॉजी, ये हो गया, मेरी स्किन पे ये हो गया, मुझे ये हो गया। जब तक वो अपनी आपको सारी पैथोलॉजी अपनी बॉडी पे होती हुई ना दिखे ना, तब तक आपने नहीं पढ़ा। तो रिवीजन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जब आप स्टार्ट करते हो, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना है आपको। उसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, सेकंड नंबर पे है। जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, टीचर से आप एक स्टेप आगे रहें, आप पूरा पढ़ें। फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे, अब जैसे आप मेरा लेक्चर सुना, तो कैन नॉट ग्रेस्प एवरीथिंग इन द फर्स्ट टाइम, ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना अपने पे प्रेशर ही मत डालो कि भाई इतना मुझे सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सबका ब्रेन का लेवल अलग है। किसी को 2 बार रिवीजन लगता है, किसी को 4 टाइम्स लगता है, किसी को 6 टाइम्स लगता है, अगर वो करना चाहे मेहनत तो। वरना एक बार पढ़ा, एक बार रिवाइज किया, यू हैव गिवन द एग्जाम। इफ यू रियली वांट टू लर्न, तो पहले फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ो उसको, उसमें से जो नहीं आता उस पर क्वेश्चन मार्क मार के छोड़ दो। जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपको लगता है कि उससे कम्युनिकेशन आपका नहीं, वो जो जिस वे में पढ़ाता है आपको शायद समझ ना आए उसके अंदर, या उसका मुझे कैच नहीं होता, वीडियोस अवेलेबल है, नेट पे देखो, इतना वीडियोस और ऑडियोज अवेलेबल है कि भाई इतना ब्यूटीफुल डायग्राम से अवेलेबल है, आप वहां से देखो, उसके अंदर एक कंसेप्ट बन जाएगा उसके अंदर। तो वहां से आप जब उसको पढ़ोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे उसके अंदर, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स अपने आप ही इरेज होने लग जाएंगे उसके अंदर, कि ये फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आया था लेकिन सेकंड टाइम आ गया। फर्स्ट टाइम जो आप जितने क्वेश्चन मार्क्स करोगे, उस क्वेश्चन मार्क को, उस लाइन को, उस पैराग्राफ को समझने के लिए यू विल सर्च न्यू सोर्सेज। इस बुक से मुझे ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, देयर आर मेनी बुक्स, वीडियोज अवेलेबल टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, वहां से आप देखोगे। तो जब आप एक ही जगह लिमिट होकर रह जाओगे, मैंने अपनी स्लाइड्स में दिखाया कितनी बुक्स देखी थी मैंने, मोर देन 15 बुक्स हैं जो मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके 3 या 4 या 5 7 बता दी। इसके अंदर बहुत सारी बुक्स देखी थी, मेरे पास तो डेटा ही अवेलेबल नहीं था,
कोई वीडियो या कुछ नहीं जो होम्योपैथी के बारे में बताए जब मैंने इसको सीखने लगी थी इसके अंदर। फॉर यू इफ यू इतना तो पैसा तो इतना अवेलेबल है कि कितनी सारे तो वेबसाइट्स हैं जो आपको टीच कर रहे हैं जाके, यू विल लर्न देयर। टाइम लगेगा पर अगर रियली वांट टू लर्न आपको टाइम लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम लगेगा, इसलिए पूरा साल दिया जाता है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, बस मुझे आई थिंक मुझे याद है, मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने पैथो पढ़ा था लाइक 2 मंथ्स के अंदर मैंने पूरा सिलेबस देख लिया था। टीचर अभी उतना नहीं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ लिया उसके अंदर। जब टीचर उस पेज से पढ़ा रहा है उसके साथ साथ मुझे और एक्सप्लेनेशन आ गया, फिर मुझे नए रिसोर्सेज से पढ़ना था उसको कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से पढ़ो, यहाँ से नहीं तो यहाँ से पढ़ो। आपको लगता है बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप हॉस्टलर हो, ट्राई टू रीच योर सीनियर, जिसको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो। किसी ना किसी सीनियर को पैथो अच्छा लगता है, कैच दैट पर्सन, वो आपको वो टॉपिक 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देगा। मुझसे पूछो, रिसर्च मुझे बहुत पसंद है, किसी भी टॉपिक को उठाओ क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा उसके अंदर। लेकिन मुझे अगर कोई और पूछेगा कि फॉरेंसिक कुछ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कुछ और सब्जेक्ट आई थिंक लेबोरेटरी ठीक है, ओके ऐसे करके। कुछ लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट वो होता है, टॉक टू देम, वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपसे हेल्प करेगा। तो इतने रिसोर्सेज हो गए आपके पास, रिपीटेशन है फर्स्ट टाइम, बहुत सारी बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं आपको लर्न करने के लिए, सीनियर्स है गाइड करने के लिए, टीचर अवेलेबल है। लेकिन आप एक ही टॉपिक को जब 2-3 लोगों से सुन लोगे, डिफरेंट 2-3 बुक से पढ़ लोगे, मुझे नहीं लगता कि वो टॉपिक कुछ बचता है जो आपको समझ नहीं आएगा। Thank you, ma'am. Thank you so much. Over to you, Priya, for the further handover. Audible? You are audible. Thank you so much, ma'am. That was such an informative webinar. Good evening, everyone. Myself, Priya Gilani, and I am today I'll be explaining about the upcoming Ayush conference, the AHSA. So I'm thrilled to inform you all that AHSA, All India Homeopathic Students and Youth Association, is going to conduct an extraordinary event, that is International Ayush Conference and Ayush Youth Festival 2025, scheduled on 12 January 2025 at Salt Lake, Kolkata, West Bengal. Many other activities like Global Youth Summit, Ayush Literacy Conclave, Arogya Fair, along with some exciting competitions like e-poster, article writing and drawing competition, a speech competition, fashion show, etc. will also be organized over there. So for more details and registration, you can get link of the conference from our YouTube description box and webinar chat box also. So don't miss out, save the date now, and thank you. Over to Dr. Lavanya, ma'am. Thank you, Priya. So participants, I hope you will be enjoying the webinar series. So kindly take a part. Thank you, ma'am. Thank you so much for enlightening us with a wonderful session and clearing all the participants' doubts too in a broad manner. Thank you, Team Aisha, for the series. Thank you, our media partner, for the extensive support. Homeo 360 degrees. Thank you all. Thank you so much. We'll come back soon with the other session tomorrow. Thank you all. Good night, everyone. Thank you. Thank you. Happy learning.